ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಣ ಹಾಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ. मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि अगर यहां पे इन्वेस्ट करेंगे तो 1-2 साल में आपका अमाउंट डबल हो जाएगा। SHM कॉलोनी में आज ही अपना प्लॉट बुक करवाइए और चंद ही सालों में अपनी रकम को डबल कर लीजिए। मजीद तफसीलात के लिए रब्त कीजिए सैयद सादिक ताता से या सैयद यूसुफ से। उनके फ़ोन नंबर 7019390826 पर या फिर फ़ोन नंबर 9611527080 पर। नाज़रीन आदाब, एवन टीवी में आप तमाम का खैर मकदम है। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी SDPI की डिस्ट्रिक्ट कमेटी ने आज रायचूर शहर के हाशमिया सर्कल यानी डॉक्टर BR अम्बेडकर सर्कल पर जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म करते हुए कांग्रेस MLA रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा को उनके ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया और MLA शिप से उन्हें डिस्क्वालीफाई करने का मुतालबा किया। वादे हो के हाल ही में श्रीरंगपटना के रुकन असेंबली रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ने ऑफिसर से ये कहा था कि अगर तुमने साबरू यानी मुसलमानों को कोई सरकारी जमीन अलाट की तो ಯಾವನಾರ ಸಾಹೇಬ್ರ ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಯಾವನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ ಅವನಿಗೆ ನ್ಯಾಣ ಹಾಕೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ। तरह का स्टेटमेंट कानून की खिलाफ वर्जी करता है, लिहाजा MLA रमेश को फौरन डिस्क्वालीफाई करने का मुतालबा करते हुए ये एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था। इस मौके पर SDPI के स्टेट मेंबर अकबर हुसैन नागुंडी के अलावा जमात इस्लामी हिंद JIH के अमीर मुकामी आसिमुद्दीन अख्तर, सोफीज स्टडी सर्कल के कन्वीनर सैयद शाह मुर्शद जानी उल खादरी सस्पोश, SDPI के डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट मतीन अंसारी, SDPI कायदीन तौसीफ अहमद, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी शेख दाऊद, सैयद अब्दुल अजीज, सैयद इरफान, हाफिज महमूद, अतीक अहमद, मुश्ताक अहमद, सिटी प्रेसिडेंट मिर्जा हसन बेग और दीगर भी मौजूद थे। बंडी गौड़ाजी ಧಿಕ್ಕಾರ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರೋಧಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರ ಸಂಘಿ ಮನಸ್ಥಿತಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತಿನ ತೂಕ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ವಜಾಗೊಳಿಸಿ ಶಾಸಕ ಬಂಡಿ ಸಿದ್ದೇಗೌಡರು ಹೇಳಿರುವಂಥ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಖಂಡನೆ ನಾವು ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ರಾಯಚೂರು ಘಟಕ ವತಿಯಿಂದ ನಾವು ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಫ್ಯಾಷಿಸಮ್ ಪೊಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಒಂದೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಮುಸಲ್ಮಾನರ ವಿರೋಧಿ ಎಂಬುದ ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದಾಗ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಮನಸ್ಥಿತಿ ಏನೆಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು ಜನರಿಗೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರೇ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಹೇಳಿಕೆಗಾಗಿ SDPI ಖಂಡಿಸಿದ್ದೆ. ಮಾನ್ಯ ಸ್ಪೀಕರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, UT ಖಾದರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ಶಾಸಕ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಶಿಸ್ತು ವತಿಯಿಂದ ತಾವು ವಜಾಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ತಮ್ಮ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಕಳೆದ 6 ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳಿದರು, ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರ ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಬಟ್ಟೆ ನನ್ನದು, ಚೈನು ಫ್ಯಾಷಿಸಂ ಮತ್ತು BJP ಅವರದು ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರು. ಅದು ಸಾಬೀತು ಆಗಿದೆ. ಮಾನ್ಯ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರೇ, ತಾವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕರು ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ನಾಯಕರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಾಹೇಬ್ರೆ, ತಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈ 92% ಮುಸಲ್ಮಾನರು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಆ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. 140 ಸೀಟಿಗೆ ಕಾರಣಭೂತರಾದಂಥ ಈ ರಾಜ್ಯದ 1,20,00,000 ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಕಾರಣಭೂತರು. ಅಂಥವ್ರನ್ನ ಸಾಹೇಬ್ರನ್ನ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೇಣಿಗಾಗ್ತೀನಿ. ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥವ್ರು, ಅವರಿಗೆ ತಾವು ವಜಾಗೊಳಿಸ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. ಪಕ್ಷದಿಂದ ಉಚ್ಚಾಟಿಸಬೇಕು ಅವರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಶಿಸ್ತು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಅಂತೇಳಿ ತಾವೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಆ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ತಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಆ ಶಾಸಕನಿಗೆ ಆ ಮತವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಮತವನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಮತಂದು ಅವರು ಉತ್ತರ ಹೇಳಬೇಕು.
ಅವರಿಗೆ ಆ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇದ್ದಾಗ ಫ್ಯಾಸಿಸಂ ಮತ್ತು ಮನುವಾದಿ ಅವ್ರ ಕೋಮವಾದಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಇರುವಂಥವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ನೀವು ಕೊಡ್ತೀರಂಬುದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಅಕ್ಬರ್ ಹುಸೇನ್ ನಾಗೋಂಡಿ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಡೆಮೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದ ರಾಜ್ಯ ಸಮಿತಿ ಸದಸ್ಯ. अस्सलाम वालेकुम। कांग्रेस पार्टी के एक एमएलए जो श्रीरंगपट्टन से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनका नाम रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा है, उस एमएलए ने एक गवर्नमेंट ऑफिसर को कहता है कि अगर तुम गवर्नमेंट की ज़मीन मुसलमानों को देते हो तो मैं तुम्हें सूली पर लटकाऊंगा। तो मैं ये कांग्रेस से पूछना चाहता हूँ, जो कांग्रेस सेकुलर बोल कर मुसलमानों के वोट लेती है और लेकर मुसलमानों के वोटों के रहम व करम पर कर्नाटक में गवर्नमेंट बनाई है। अब ये सब जो कांग्रेस लीडर अपने आप को सेकुलर कहते हैं, ये कहाँ हैं और इसका जवाब उस एमएलए से क्यों नहीं पूछ रहे हैं? और मैं ये कांग्रेस पार्टी को बताना चाहता हूँ और आम लोग भी ये समझें कि अब वक्त बदलाव का आ गया है। अगर हम नहीं बदलेंगे तो हमारे कर्नाटक के हालात यूपी, मध्य प्रदेश, आसाम से भी खतरनाक हो जाएंगे। हमें इस पार्टी की बजाय और दूसरा हमें इंतज़ाम खुद कर लेना चाहिए। ये बीजेपी हो या चाहे कांग्रेस पार्टी हो, ये समझती है कि कर्नाटक में कोई अब स्टेट पार्टी बाकी नहीं रही, तो हम जो चाहे किसी भी कौम के खिलाफ बोले तो ये खामोश रहेंगे। तो मैं इनको वार्न करना चाहता हूँ कि तुम जो भी करना चाहते हो करो, इस बात को याद रखो कि तुम्हारा मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हमेशा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया यानी कि SDPI आपके लिए मैदान में तैयार रहेगी। इस बात को याद रखना। ये बात कहकर मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। जानते हैं 2 दिन पहले कांग्रेस के एक अपने आप को सेकुलर कहने वाले एमएलए रमेश बंडी सिद्धेगौड़ा ने वहाँ के तहसीलदार को एक वार्निंग दी, अगर ये गवर्नमेंट की जगह मुसलमानों को करे तो उसको फांसी लटका दूँ। मैं पूछना चाहता हूँ इन सेकुलर कांग्रेस के लीडरों से, जब आपके नेशनल प्रेसिडेंट, आपके नेशनल लीडर कहे हैं कि कांग्रेस के अंदर RSS की सोच रखने वाले मौजूद है, उसके बावजूद भी इन लोगों को आप खुली छूट दे रहे हैं। उसके बावजूद भी आज ओपन ये लोग वीडियोस में क्लियर नज़र आ रहा है कि इस तरीके के जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंदाज स्टेटमेंट दे रहे हैं, उसके ऊपर क्यों एक्शन नहीं लिया? और कल जब SDPI पूरे रियासत में कर्नाटका में रोडों पे उतर कर इसके खिलाफ एहतजाज करी तो ये है ना माफ़ी मांगता है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मेरे से ये गलती हो गई बोलते और बोलता है ये मेरी ज़बान से निकल गया, ये हम अपनी भाषा में बोलता है, ये हमारा कल्चर से निकल गया। मैं पूछना चाहता हूँ, आज आप गाली दे रहे हो और कल सारी बोल रहे हो, इसका मतलब क्या है? क्या ये कॉमन हो गया है आज गाली देना और कल माफ़ी मांगना? ये माफ़ी मांगने से ये सिलसिला यहीं पे नहीं रुकेगा। हम कहना चाहते हैं यहाँ के सिद्धरामैया जी से, अगर आपकी पार्टी सेक्युलर है तो इनको फौरी तौर पे इनका डिसमिस करना चाहिए और असेंबली में इसकी कोई जगह नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ऐसी जहन रखने वाले जो मुसलमानों के वोट जो लेते हैं सेकुलरिज्म के नाम पे, लेकिन अपना जो RSS का एजेंडा है वो आगे पावर में आने के बाद करते हैं, इन लोगों को सिर्फ माफ़ी मांगने से वो जो गलती किया है उसका पूरा नहीं होगा। इसके ऊपर क्रिमिनल केस बुक करके इसको जो है डिसमिस करना बोल के आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया रायचूर में एक प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करी है। मैं इस प्रोटेस्ट के ज़रिए से एक और वार्निंग देना चाहता हूँ, अगर इन चीज़ों को ये जो नफरत की सियासत कर रहे हैं सेकुलर पार्टियों में रह के, इन चीज़ों को अगर रोक नहीं लगाए, आने वाले म्यूनसिपालिटी इलेक्शन हो
या फिर TP-ZP इलेक्शन हो, उसमें मुंह तोड़ जवाब देने के लिए SDPI हमेशा आगे रहेंगे इंशाल्लाह। मुझे बात करने का मौका दिया, शुक्रिया अदा मैं मोहम्मद आसिमुद्दीन अख्तर, अमीर मुकामी जमात इस्लामी। ये जो हमारे श्रीरंगापट्टनम के MLA साहब ने जो हरकत की है, जिस तरह का स्टेटमेंट हमारे सामने आ रहा है, इसकी भरपूर मजम्मत करता हूँ और कांग्रेस के जो लीडरशिप है उनसे इस बात का तकाजा करता हूँ कि वो इसका नोटिस लें और फौरी एक्शन लें। ये मुनासिब बात नहीं है। आप एक माइनॉरिटी को टारगेट कर रहे हैं और गैर जिम्मेदाराना बात कह रहे हैं, ये मुनासिब बात नहीं है। तो हम इसकी जोर मुखालिफत करते हैं और गुजारिश करते हैं कि जो लीडरशिप है कांग्रेस की, इसको फौरी जो है एक्शन ले इस पर और उनको डिसमिस करें, जो करना है करें। जज़ाकल्लाह, थैंक यू। हमारे कैमरा मैन जो मीडिया आज कौन भी इतना बड़ा MLA बोलने के बाद भी आज मोदी पार्टी उसको कहा बात नहीं उठा रही। मैं फकर है मेरे को, मैं आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की जगह सिटी पंचायत मैं ये कहना चाहता हूँ, वो MLA को कल बोलता है आज माफी बनता है। अगर वो माफी मांगे तो मसला हल होता क्या? उसका मसला हल होने के नहीं है तो सही है, उसकी पार्टी से कांग्रेस